Hello everyone. The today's topic will be magnetic field on axial line of a circular loop carrying current. So for this topic we can suppose a circular loop which is placed something like this. Now you will be saying it is not visible as a circular loop, it is kind of looking like elliptical loop, but actually it is a circle. Suppose circle is kept in front of you, then it will look like a circle, but if circle is kept like this, then only this much portion of the circle will be visible to you and the rest of the circle will go inside the plane of paper. It is something like that only. So we can suppose some current is flowing through this circular loop and that current is equal to I. Now what will be the axial line of the loop? This is the center of the loop. If we imagine the radius of this circle is small a, then the point of interest will be here, at which we need to find out the value of magnetic field due to this circular loop. Now children, we will be applying the formula that is called Biot-Savart's law for this purpose, and this law is termed as Biot-Savart's law, which is written something like this: dB vector, meaning the magnetic field due to a small component of a current carrying conductor, is given by mu naught over 4 pi. It is a constant quantity. Then it is I dl sine theta over r square. Now what are the quantities I, dl, theta and r? This you have studied earlier. So for doing this topic, we must suppose small portions of this circular loop, because we know Biot-Savart law is only applicable when we take the small portions or small current carrying conductors. We can suppose this portion. The direction of this portion is here, because dl is a scalar quantity. But when we have to make it a vector quantity, then we must multiply it by the direction of current. So the dl vector will be here, but at the bottom point हम बहुत सारे small dl vectors consider कर सकते हैं, but इन दो को हम extreme case लेते हैं, because direction of this dl is towards this side and direction of this dl is towards this side. Now I cannot say it is towards the right hand side. अगर circle ऐसे पड़ा होता तो सर्कल में dl की डायरेक्शन इधर होती. नाउ द सर्कल इज प्लेस लाइक दिस, dl की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, और जो सर्कल यहाँ जाते जाते देखो, सर्कल यहाँ जाते जाते कंप्लीट होता है, तो नीचे वाले dl की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, यानी एक तुम्हारी तरफ एक पीछे की तरफ, यानी कुछ ऐसे, एक इधर ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी 1 dl इज हियर. सो अगर मुझे इसको वेक्टर लिखना है, आई मस्ट राइट इट dl वेक्टर, और इसको वेक्टर लिखना है dl डैश वेक्टर, क्योंकि dl और dl इक्वल तो नहीं है, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. नाउ नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, dl का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जो डिस्टेंस होता है हम उसको r लिखते हैं. सो दिस विल बी r वेक्टर, राइट. जो dl से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के डिस्टेंस को हम r वेक्टर लिखते हैं. नाउ वी कैन सपोज फॉर द इंस्टेंस दिस एंगल इज 5. This is a very small angle because mostly we suppose point P is very far away. What is the distance of point P from here? It is x. Distance of point P from center of the circular loop is x. Now what will be the value of r? R will be equal to, Pythagoras लगा लेंगे, a square plus x square. Now in the whole question आपको r को under root of a square plus x square ही suppose करना है. Now where will be the direction of db vector? Now dl की direction इधर है and जो p की direction है, यानी जो डिस्टेंस वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी मेकिंग एन एंगल 5. आप इस चीज को नॉर्मली समझो किस तरह से, अगर dl इधर होता एंड dl कहाँ होता, बाहर की तरफ. मैंने आपको बताया था ना, dl बाहर की तरफ होता और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ होता, तो आप लॉ कैसे लगाते हैं, हम लॉ लगाते राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ऊपर की तरफ, मतलब राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ dl और उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए थी, ऊपर. ठीक है, आप लॉ दोबारा लगा के देख सकते हैं वेरी इजीली. बाहर की तरफ
और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, मेरी बाजू थोड़ी नहीं हो पाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर की तरफ, तो थंब कहाँ जाता है, थंब गोज लाइक हियर अपवर्ड्स। लेकिन देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, मतलब फाई एंगल से ये लाइन ऊपर उठी हुई है, यानी ये लाइन ऐसे नहीं है दैट वी वर सपोजिंग, ये लाइन थोड़ी नीचे है, तो डीबी वेक्टर को भी थोड़ा टिल्ट कर जाना चाहिए। डीबी वेक्टर यानी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल पोर्शन, तो डीबी वेक्टर को कितना टिल्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बाय एन एंगल ऑफ फाई, दिस ऑल्सो शुड बी इक्वल टू फाई। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, बिकॉज हम जानते हैं एक्चुअल फॉर्मूला में डीएल क्रॉस आर होता है, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर होगी, डीएल और आर के परपेंडिकुलर, यानी दिस मच डीबी वेक्टर। सो और इस लाइन का यानी इस एक्सियल लाइन का परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तब भी इस एंगल को फाई कह सकते हो। तो अब डीबी को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व कर सकते हैं इसको एज डीबी कॉस थीटा, एंड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी इधर की तरफ ये आ जाएगा डीबी साइन थीटा, फाई, सॉरी दिस इज एंगल फाई बिकॉज वी हैव टेकन द एंगल टू बी फाई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट अगर हम आपको समझाएं, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, नाउ दिस इज डीएल वेक्टर डैश इन दिस डायरेक्शन। अब डीएल वेक्टर डैश के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज करोगे, डिस्टेंस यहाँ से, डिस्टेंस की वैल्यू अभी भी आर की वैल्यू बाय द डायग्राम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलरली आप नीचे की तरफ हाथ रख के इधर जाते तो डायरेक्शन आती नीचे की तरफ, बट एंगल से टर्न कर जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ डीबी डैश वेक्टर वी कैन से इट टू बी डीबी डैश वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, विच इज अगेन मेकिंग एन एंगल फाई, राइट, विच इज अगेन मेकिंग एन एंगल फाई। सो डीबी डैश को रिजॉल्व करोगे, डीबी डैश कॉस फाई, एंड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहां होना चाहिए डीबी डैश साइन फाई। नाउ वी हैव डन वन थिंग, दैट द वैल्यू ऑफ magnetic field due to this portion and due to this portion we have derived, right? and ऐसा क्यों किया, आपने देखा छोटे छोटे पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड कहीं एक दूसरे के साथ कैंसिल तो नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में मेन यही डाउट था कि सर्कल है एक डायरेक्शन ऊपर, तो उसी के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑपोजिट डायरेक्शन जरूर होगी सर्कल में, तो कहीं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। उस चीज को हमने फाइनलाइज करने के लिए दो वेक्टर्स ले लिए। नाउ वील बी राइटिंग द वैल्यू ऑफ डीबी, dB will be equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. Now you can put the values. Values क्या रहेंगी? Putting the values we get I dl sin theta meaning the angle between dn and r vector. dl and r vector के बीच में ये एंगल है, बट अगर आप क्लियरली देखो इट इज अ ट्राइंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर बहुत छोटा है, सपोज उसकी वैल्यू 1 डिग्री है, तो ये 89 हुआ। आप फॉर अ गुड रीजन उसको 90 सपोज कर सकते हैं। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, डीएल साइन 90। आर क्या है, आर इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, डीएल एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो लाइन होता है। आर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप उसको डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसल्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीबी। वेक्टर नहीं लगाया मैंने बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग द डायरेक्शन येट। सिमिलरली डीबी डैश भी तो यही होगा, अगर ओनली मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन डिस्कस, डीबी डैश भी तो यही होगा। यू कैन चेक, डीएल है एंगल ये वाला भी, आप यहाँ से एंगल फिर से चेक कर सकते हैं 90 डिग्री, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। अगर ऐसा किया तो डीबी कॉस फाई और डीबी डैश कॉस फाई तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल and opposite, hence cancel, आप ऐसा कह सकते हैं, राइट। dB cos phi and dB dash cos phi cancel each other, मतलब ऑपोजिट भी है अगर dl की डायरेक्शंस, तो उनका साइन फाई कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करेगा यानी ऐड करेगा। मतलब इससे मुझे सिर्फ ये पता लगा कि कॉस फाई कॉम्पोनेंट कहीं पे भी है तो हमने उसको कैंसिल करना है, सिर्फ साइन फाई कॉम्पोनेंट को लेना है। इन दो को लेने का यही मोटिव था। अब बाकी क्वेश्चन हम सिर्फ डीबी से करेंगे, डीएल डैश डीबी डैश इस सबको हम एक बार के लिए भूल जाएंगे। फाइनली हमने क्या सपोज किया यहाँ से कि डीबी का कॉस फाई कॉम्पोनेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो ये कॉस फाई कॉम्पोनेंट होगा वो किसी भी
करंट कैरिंग स्मॉल कंडक्टर के कारण कैंसिल होगा ही होगा इन पेयर्स. एग्जिस्ट कौन सा करेगा? ओनली साइन फाई कॉम्पोनेंट. नाउ वील बी डूइंग द मैथमेटिकल. टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन किसकी? dB साइन फाई, क्योंकि सिर्फ dB साइन फाई कॉम्पोनेंट इज एग्जिस्टिंग. तो मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आएगा? B. इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल. आप इंटीग्रेशन लोगे कैसे? अगर तो dB साइन फाई ले रहे हो, अगर तो dB साइन फाई ले रहे हो तो dB की और साइन फाई की वैल्यू पुट करोगे फॉर द होल ऑफ द सर्कल, पूरे के लिए. अगर आप dB साइन फाई प्लस dB डैश साइन फाई ले रहे हो तो आप सिर्फ सेमी सर्कल के लिए करोगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. dB साइन फाई ले रहे हो तो पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट करेंगे. तो आई विल बी इंटीग्रेटिंग इन इट ऑन फुल सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे. dB की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? आई dl ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और साइन फाई की वैल्यू, डायग्राम पे जाएंगे साइन फाई की वैल्यू के लिए. फाई के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? a. और हाइपोटेन्यूज कौन हुआ? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट के लिए. ना तो क्वांटिटीज जिन पे इंटीग्रेशन होनी ही नहीं है उनको बाहर निकाल लो. आई बाहर, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. आई मिस्ड हियर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड अगेन हियर ऑल्सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई. हियर ऑल्सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई. कांस्टेंट बाहर आ गया. आई कॉमन, ए कॉमन, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2. इंटीग्रेशन करोगे डीएल की फॉर द होल ऑफ द सर्कल. अगेन आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएल? डीएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई को आप यहाँ कभी भी 2 पाई आए तो आता रहे, कोई बात नहीं, आप कैंसिल नहीं करेंगे. राइट नाउ आई विल बी गोइंग फर्दर विद दिस फॉर्मूला अगेन. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? वील बी वॉचिंग दिस. आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला अगेन फॉर this page also. Value of magnetic field for the circular loop on the axial line comes out to be mu naught over 4 pi. You have written a square plus x square raised to power 3/2. This is the value and साथ में क्या था? 2 pi into a. 2 pi into a. अब करो सॉल्व. mu naught over 4 pi 2 अलग कर लो, पाई ए स्क्वायर अलग कर लो, करंट अलग कर लो, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. अगेन म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 इंटू एरिया इंटू करंट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. नाउ अगेन इस वाले सर्कल में तो एक ही लूप थी, एक ही सर्कल दिया था. इफ यू हैव n टर्न्स टू द सर्कल, सर्कल की एक टर्न है, दूसरी टर्न है, तीसरी टर्न है, मतलब इफ यू हैव n कैपिटल n टर्न्स तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हो. आप इस आंसर को क्या लिख सकते हो? फॉर n टर्न्स योर आंसर कैन चेंज टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 इंटू सिर्फ n टाइम्स कर दो ani डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. एंड अगेन ये जो NIA होता है हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे. NIA का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट. वी कॉल इट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सर्कुलर लूप कैरिंग करंट का कैपिटल M होता है, तो यू विल बी राइटिंग इट एज कैपिटल M. तो आप आंसर इस तरह से याद कर सकते हैं. आंसर विल बी इक्वल टू यहाँ पे M क्या है? M है निया NIA. आप इस तरह से याद कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field due to this circular loop will be mu naught over 4 pi 2m a square plus x square raised to power 3/2. Now if I will be writing a vector sign over it, I must write its direction also. Where will be its direction? Direction will be away from this point. If this is the circle, direction will be on the axial line away from the point. लेकिन कब? When the circle is like this, current is like this. current तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर थंब को ऐसे बंद करो, थंब जिधर जाएगा इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
अगर करंट अंदर जा रहा होता, मतलब करंट पेपर के अंदर जा रहा होता, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आती, इधर, यानी तब डायरेक्शन होती इधर. बट द करंट इज कमिंग टूवर्ड्स मी, मैंने ऐसे बनाया ना बाहर की तरफ, करंट इज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर. वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी आउटवर्ड्स. अगर मैं इस पॉइंट को P लिखा है, मैं इसको x डैश लिख देती हूँ, देन मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्शन विल बी along px vector, px dash vector, या along px dash, whatever you can write. So this is a very important formula. We first of all must learn this formula, that what is the magnetic field due to a loop and where should be the direction. Thank you.